Bismillahirrahmanirrahim. Students, our today's topic is the second part of Crony-Penny model. In the first part of our lecture, we have studied about what is Crony-Penny model, what information it gives to us. So the main points which we have in mind are Crony-Penny model basically gives us the concept of band structure, and basically it provides us information about the nature or shape of the periodic potential. So Crony-Penny model is actually first time defined that the potential is in the form of array of square waves. So we have left from this slide in our previous discussion, where by applying different boundary condition we have built this determinant, and by solving this determinant we reached to a simplified equation, which is presented over there in the last of this slide. Cos KAB is equal to beta square minus alpha square over 2 alpha beta sin alpha A sin hyperbolic beta B cos alpha A cos hyperbolic beta B. So now we move further. So we start from this equation, which is a very simplified equation, come from the determinant. So to simplify this equation, Crony-Penny model have some assumptions that the potential energy is zero at the latest sites. You can see the latest sites in the form of balls. So potential energy is assumed to be zero at the latest sites and equal to V naught in between them, between the latest sites. So this is a latest site, this is another latest site, and potential energy is maximum at this time between the latest sites. So this is one of the assumption. तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लेटेस्ट साइड पे तो जीरो है और दोनों एटम्स के दरमियान जो जगह है वहां पे मैक्सिमम है और वी नॉट के बराबर है. तो दूसरी assumption जो Crony-Penny मॉडल में हमने देखी है, the other assumption is the potential barrier tends to infinity. If let's assume that potential barrier is very high, which tends to infinity, and width of the barrier which is represented by B, because barrier start from 0 to minus B, so width is B. The width of the barrier is very small. The barrier is in the form of a spike, so that the product V naught B remains a finite value. One is very large value, other is very small value. So the product remains finite. Okay, so we can say that this is the direct delta function type potential energies V naught separated by distance A, and the potential energy is zero between the delta function spikes. So these barriers can be seen as narrow spikes which are separated by a distance equal to distance between the two nuclei, which is A. Okay. So using these assumptions, we reach to the point that sin hyperbolic B beta B for very small angle sin theta is nearly equal to theta. So sin hyperbolic beta B will be nearly equal to beta B, and cos hyperbolic beta be nearly equal to 1. So when angle is very small, value of cos approaches to 1. As we said that width of the barrier is very thin, so basically here all these results are B approaches to 0. So hence our initial equation, this after accommodating these assumptions, will change to this cos Ka by putting B is equal to 0 is equal to beta square minus alpha square over 2 alpha beta, beta B in place of sin hyperbolic beta B, and cos alpha A. So here cos hyperbolic beta B will be used as 1. So this is the new value for
this equation from where we start. तो इस इक्वेशन की ये न्यू वैल्यू है बीटा और अल्फा की जो वैल्यूज हैं वो हमने अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर डिफाइन की थी। उन्हीं वैल्यूज को लेके हम बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो बीटा स्क्वायर की वैल्यू है और ये जो सेकंड पे है ये आपके पास अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है। तो स्टार्ट में हमने वैल्यू ली थी और जो ये यहाँ पे वैल्यू लिखी है उनमें एक माइनर सा डिफरेंस है और मेरे ख्याल में आप उसे आसानी से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि वहाँ पे हमने एच कट इस्तेमाल किया है और यहाँ पे हम एच इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एच कट कैन बी रिप्लेस्ड बाई एच ओवर 2 पाई, तो यू गेट द सेम रिजल्ट। तो ये आपके पास जो है वो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट माइनस 2e। तो हमने अज्यूम किया है कि जो बैरियर की हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। इसका मतलब वो उसकी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा आपने अज्यूम की है। तो वी नॉट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन दैट ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपने रिलेशनशिप फाइंड किया बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, इसमें ये जो सेकंड टर्म है एनर्जी वाली ये 0 हो जाएगी। सो यू गेट अ सिंप्लीफाइड रिजल्ट फॉर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर वी नॉट। जी, तो हम इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ से हमने एक सिंप्लीफाइड वैल्यू निकाली है बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर की, दैट इज 8 पाई स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर वी नॉट। इस वैल्यू को उठा के हम जो है दोबारा इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो ये हमारी जो इक्वेशन है काज के लिए ये और सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसे देखते हैं। ये हमने जो है वो वैल्यू पुट कर दी है बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर की यहाँ पे। तो ये इक्वेशन जो है इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है बाय यूजिंग सिंपल सिंप्लीफिकेशंस। और इसमें ये जो है आपने फाइनली काज के की वैल्यू बनाई है पी साइन अल्फा ओवर अल्फा प्लस काज अल्फा। ठीक है, ये पी जो है ये आपने ये सारे कॉन्स्टेंट्स की जगह पे लिखे 4 पाई स्क्वायर m a h स्क्वायर और वी नॉट बी। हम बाद में डिस्कस करेंगे कि पी यहाँ पे क्या चीज़ है। सिंपल वर्डिंग में अगर आप कहें तो हम कह सकते हैं बेसिकली बी जो है वो बैरियर की विड्थ है और वी नॉट जो है वो बैरियर की हाइट है। तो पी ओवरऑल एक्चुअली आपको बैरियर की स्ट्रेंथ जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि बैरियर की हाइट कितनी है, बैरियर की विड्थ कितनी है। तो हम इस इक्वेशन पे फोकस करेंगे। काज के ए की वैल्यू हमारे पास आई है पी साइन अल्फा ए ओवर अल्फा ए प्लस काज अल्फा ए। So we have to look at this equation. So this is the equation cos k a is equal to p sin alpha a over alpha a plus cos alpha a। तो हम इस इक्वेशन को जो है वो अल्फा डिपेंडेंट इक्वेशन है, अल्फा ए पे डिपेंड कर रही है। तो अल्फा के अगेंस्ट अगर हम इसको ड्रा करें तो ये हमारे पास जो है वो इसका रिलेशनशिप बनेगा। ये ग्राफ जो है वो कुछ इस किस्म का बनेगा। इसमें दो टर्म है। पहली जो टर्म है उसमें बैरियर की स्ट्रेंथ है, साइनोसाइडल फंक्शन है। दूसरी कोसाइन फंक्शन है हमारे पास। तो इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसको हमने अल्फा ए के, ये वाई एक्सिस पे राइट हैंड साइड है और वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे जो है वो अल्फा ए है। इनका हमने ग्राफ बनाया है। तो सेकंड टर्म की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम +1 हो सकती है, मिनिमम -1 हो सकती है। फर्स्ट टर्म जो है उसमें साइन के लिए भी ऐसा ही है, लेकिन टी की मौजूदगी और अल्फा ए की जो मौजूदगी है फर्स्ट टर्म के साथ वो वैल्यूज में वेरिएशन प्रोड्यूस करेगी। तो जैसे जैसे अल्फा ए की वैल्यू बढ़ेगी तो फर्स्ट टर्म में चूंकि डिनोमिनेटर में अल्फा ए मौजूद है और डिनोमिनेटर उसका बड़ा होगा तो एवरेज वैल्यू ग्रेजुअली रिड्यूस होती जाएगी। इसलिए आप देखें जैसे जैसे हम ओरिजिन से दूर जाते जा रहे हैं तो जो वाई एक्सिस पे वैल्यू है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम इसी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करें जो कि काज के ए के बराबर है। तो इक्वेशन की लेफ्ट साइड हमें ये बता रही है कि एक कोसाइन फंक्शन है और काज फंक्शन जो है इसकी वैल्यू मैक्सिमम +1 हो सकती है, मिनिमम -1 हो सकती है। तो ये ओरिजिन जो था, ये सेकंड डायग्राम में अगर आप देखें ओरिजिन में आपने +1 पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर दी है, एक -1 पे हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर दी है। यही वो वैल्यूज हैं जो कि पॉसिबल हैं, जो कि अलाउड हैं। इसके अलावा अगर कोई वैल्यू होगी तो वो पॉसिबल नहीं होगी। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये ज़रूरी है।
तो जब हम इस डायग्राम को गौर से देखते हैं तो कर्व के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर हैं या जो नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रा की है उससे नीचे। दीज आर आउट ऑफ द अलाउड रीजन, दीज आर द रीजन विच आर आउट ऑफ द अलाउड रीजन। सो इन हिस्सों को अगर आप फोकस करें इन पे, तो जो रीजन जो है वो अलाउड रीजन में जो हिस्सा आ जाएगा उसे कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो अलाउड वैल्यू है, अल्फा की वो वैल्यू है जो कि एग्जिस्ट कर सकती है, और अल्फा की वो वैल्यू जिनके लिए जो राइट हैंड साइड थी उसकी वैल्यू +1 या -1 की लिमिट को क्रॉस कर गई थी, वो ऐसा पोर्शन होगा जो कि अलाउड नहीं होगा। तो अगर आप इस पॉइंट पे फोकस करें, यहाँ पे देखें तो यहाँ तक ये कर्व अलाउ है, यहाँ से शुरू होके इस जगह तक कर्व अलाउ है। उसके बाद इस पॉइंट से लेके पाई से लेके इस पॉइंट तक जो है वो पोर्शन जो है वो अलाउ नहीं है, तो अल्फा ए की ये वैल्यूज जो है वो अलाउड नहीं होंगी। ठीक है, फिर यहाँ से शुरू होता है 2 पाई तक का, अगर आप देखें तो ये वो हिस्सा है कर्व का जो कि अलाउड है। तो इस दौरान अल्फा ए की जितनी वैल्यूज हैं वो अलाउड होंगी। इसके बाद वैल्यू ने फिर जो है वो +1 को क्रॉस किया है, तो जैसे वैल्यू ने +1 को क्रॉस किया तो अल्फा ए की ये सारी वैल्यूज जो हैं ये अलाउड नहीं होंगी, क्योंकि इनके लिए वैल्यू जो है वो +1 से ज़्यादा हो गई है। तो इक्वेशन की राइट हैंड साइड की वैल्यू +1 से ज़्यादा हो जाए तो भी अलाउड नहीं होगी, -1 से ज़्यादा हो जाए तो भी अलाउड नहीं होगी। तो फिर ये जो आपके पास ग्राफ है ये कंटिन्यूस ग्राफ नहीं बनेगा, इसमें फॉरबिडन रीजन आ गए हैं जो कि अलाउड नहीं है, जो हमें ये शो करते हैं कि अल्फा की सारी वैल्यूज जो हैं वो अलाउड नहीं है, या अल्फा ए जो है उसकी सारी वैल्यूज अलाउड नहीं है। अल्फा किस चीज़ से रिलेट करता है? अल्फा एनर्जी से रिलेट करता है। अल्फा का जो शुरू में हमने फार्मूला लिखा था, अगर उस फार्मूले को जहन में लेके आए तो अल्फा बुनियादी तौर पे किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एनर्जी पे डिपेंड करता है। अभी हमने उसको पिछली स्लाइड पे भी जो है वो फार्मूले में शो किया था, दिस वन 8π² me/h², ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है। तो अल्फा एनर्जी से रिलेट करता है। तो अगर अल्फा की सारी वैल्यूज अलाउड नहीं है या अल्फा ए की सारी वैल्यूज जो है वो अलाउड नहीं है, तो फिर एनर्जी की भी सारी वैल्यूज जो है वो अलाउड नहीं होगी। तो अगर एनर्जी की सारी वैल्यू अलाउड नहीं है तो ये हमें क्या बताता है कि एनर्जी कंटिन्यूस नहीं है। इलेक्ट्रॉन के लिए जो अलाउड एनर्जी है वो कंटिन्यूस नहीं है, मखसूस रीजन्स हैं जिसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है, और कुछ मखसूस रीजन ऐसे भी हैं जो कि अलाउड नहीं है, इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी नहीं रख सकता, एनर्जी की वो वैल्यू अलाउड नहीं है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। तो यहाँ पे जो अलाउड रीजन होगा उसको हम एनर्जी बैंड कहेंगे, और जो फॉरबिडन रीजन होगा उसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहेंगे या एनर्जी गैप कहेंगे या फॉरबिडन रीजन कहेंगे। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ बैंड्स। हम बैंड थ्योरी में ये पढ़ते हैं कि एनर्जी बैंड्स होते हैं, जैसे एक कंडक्शन बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड है और एक वैलेंस बैंड है, उनके दरमियान में कुछ ऐसा रीजन आता है टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड और बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड के दरमियान, जो कि अलाउड नहीं होता, फॉरबिडन होता है। ये रिजल्ट हमें कहाँ से मिल रहा है? ये रिजल्ट हमें क्रोनी-पेनी मॉडल से मिला है। इसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन देखें तो ये सारी बातें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, जो कोसाइन टर्म जो है लेफ्ट साइड पे उसकी वैल्यू या +1 हो सकती है या -1 हो सकती है, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन लगी कि अल्फा की मखसूस स्पेसिफाइड वैल्यूज या एनर्जी की स्पेसिफिक वैल्यूज ही अलाउड होंगी, सारी वैल्यूज जो हैं वो अलाउड वैल्यू नहीं है। तो अगर एनर्जी की सारी वैल्यू अलाउड नहीं है तो इसका मतलब एनर्जी डिस्क्रीटली एग्जिस्ट करती है, इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स एग्जिस्ट करती है। तो फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एनर्जी काज के जो है इसकी वैल्यू भी स्पेसिफिक होगी। ठीक है, मोर ओवर चूंकि काज जो है वो इवन फंक्शन है तो के साइन से फर्क नहीं पड़ता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा। तो काज के अंदर जो आपके पास वेव वेक्टर के है, अगर इसकी वैल्यू रियल होंगी तो काज के जो है वो हमेशा <1 आएगा या 1 आएगा या <1 आएगा। ठीक है, तो काज के की वैल्यू 1 या <1 अगर आती है तो दैट करस्पॉन्ड्स टू अलाउड एनर्जी बैंड, राइट। और अगर इसकी वैल्यू जो है वो <1 आ जाती है, ये तभी पॉसिबल होगा अगर के की वैल्यू जो है वो रियल की बजाय इमेजिनरी हो।
अगर cos के a की वैल्यू रियल की बजाय इमेजिनरी होगी तो cos के a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आ सकती है, उसकी मॉड वैल्यू जो है, ठीक है। तो k की हम जो है इलेक्ट्रॉन के लिए इमेजिनरी वैल्यूज जो है वो नहीं होती। तो अब्सेंस ऑफ इमेजिनरी वैल्यू शो करता है कि ये जो रीजन होगा जिसके लिए k इमेजिनरी हो या जिसके लिए cos k ग्रेटर देन 1 हो, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू फॉरबिडन एनर्जी बैंड और फॉरबिडन एनर्जी रीजन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बात भी हमने डिस्कस की कि अगर अल्फा ए इंक्रीज करेगा तो जो इक्वेशन की राइट साइड है उसमें पहली टर्म जो है उसमें वो अल्फा ए से डिवाइड हो रही है, तो ओवरऑल जो राइट साइड की वैल्यू है उसकी एवरेज वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज करती जाएगी। यही वजह है कि ग्राफ में पीक्स जो है वो ऐसा ऐसा छोटी होती जाएगी। उसी का जो है अल्टीमेट इम्पैक्ट आपको जो फॉरबिडन एनर्जी बैंड है उस पर भी देखने को मिलेगा। ओके, जो अलाउड एंड फॉरबिडन एनर्जी बैंड आर स्कीमेटिकली शोन इन फिगर। तो यहाँ हमने एनर्जी को वेव वेक्टर के अगेंस्ट ई के डायग्राम कहते हैं, इसको ड्रा किया है फॉर अ बाउंड पार्टिकल। जो मोशन इलेक्ट्रॉन की पीरियोडिक लेटस में मौजूद है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अलाउड एनर्जी बैंड सेपरेटेड बाय फॉरबिडन एनर्जी बैंड। तो यहाँ पे देखें, पहले ब्रिलियन जोन वाइज जो है वो डिस्क्राइब किया है, ओरिजिन जो है वो 0 है। तो पहला ब्रिलियन जोन है पाई ओवर ए टू माइनस पाई ओवर ए, दिस वन पाई ओवर ए टू माइनस पाई ओवर ए, दिस इज योर फर्स्ट ब्रिलियन जोन। तो इसमें ये देखें जी, ये E1 जो है ये शो करता है अलाउड एनर्जी बैंड को। उसके बाद सेकंड ब्रिलियन जोन आपके पास होगा -2 पाई ओवर ए और 2 पाई ओवर ए उसकी बाउंड्री है। तो ये जो है E2 से E3 के दरमियान जो एनर्जी है दैट करस्पॉन्ड्स टू द सेकंड अलाउड बैंड, और E4 और E5 के दरमियान जो एनर्जी है दैट करस्पॉन्ड्स टू थर्ड अलाउड बैंड एंड सो ऑन। और इन बैंड्स के दरमियान ये जो वेकेंट स्पेस है, दिस वन एंड दिस वन, ये जो वेकेंट स्पेसेस हैं दीज आर बेसिकली फॉरबिडन एनर्जी गैप। So this is the basic concept of Crony-Penny model, which gives you information about the existence of electronic band structures in the solids. अब एक बात रह गई जी, बैंड का कंसेप्ट हमें पता चल गया कि क्रोनी-पेनी मॉडल से किस तरह हमें बैंड का कंसेप्ट जो है वो मिलता है। तो लास्ट चीज है इस इक्वेशन पे जो P है उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो जो टर्म है हमारे पास P, इसको हम तौर पे हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द बैरियर, और ये V0D के बराबर है, ठीक है। तो इफ पी इज लार्ज, अगर पी की वैल्यू बड़ी होगी इसका मतलब है तो ये प्रोडक्ट जो है V0B ये लार्ज होगा। तो द अलाउड बैंड्स आर नैरो, अगर बैरियर बड़ा होगा, बैरियर की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो अलाउड बैंड जो है वो नैरो होंगे और फॉरबिडन जो बैंड्स हैं वो वाइडर होंगे। ये कॉमन सेंस की बात है। तो फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ पी वी हैव, पहले केस में आपको बैंड नजर आएंगे, पी की जो है वो फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है, उसके लिए आपको बैंड नजर आएंगे। यहाँ पे रिलेशन सिंपल है, जैसे जैसे आप ए की वैल्यू जो है उसको इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो है अलाउड बैंड नैरो होते जाएंगे और फॉरबिडन बैंड जो है वो वाइड होते जाएंगे। बी केस जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, बी केस में पी को हमने बहुत बड़ा कर दिया, अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अगर पी अप्रोचेस टू इंफिनिटी करेगा तो फिर इसका मतलब बैरियर इतना बड़ा हो गया कि इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल नहीं है, प्रोबेबल नहीं है कि वो बैरियर को टनल करके गुजर जाए। तो फिर आपको जो अलाउड बैंड है वो बहुत ही नैरो स्ट्रेट लाइन की शक्ल में नजर आएंगे, बाकी सारा रीजन जो है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा। और तीसरा केस जो है वो हमारे पास ये है कि अगर पी की वैल्यू 0 हो जाए इसका मतलब बैंड बैरियर एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर बैरियर एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब फ्री रीजन है, तो पार्टिकल हमारा फ्री है। तो फिर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो परफेक्ट कॉज जो पहली टर्म है यहाँ पे 0 हो जाएगी इस इक्वेशन में। अगर आप देखें, अगर पी को आप 0 पुट कर दें तो आपको सिर्फ कोसाइन वेव मिलेगी जिसकी वैल्यू +1 और -1 हो सकती है, उसमें ना कोई कमी होगी ना वो ज्यादा होगा, प्लस और -1 के दरमियान रहेगी वैल्यू जो है। तो जिस तरह ओवरऑल इक्वेशन में जो है वो वैल्यू अल्फा के बढ़ने से ग्रेजुअली डिक्रीज होती थी एवरेज वैल्यू, तो यहाँ एवरेज वैल्यू फिक्स रहेगी। हाँ, इंस्टेंटेनियस वेरिएशन जो है वो आपको पी की वेरिएशन के साथ नजर आएंगे।
तो ये है जी हमारी डिस्कशन करोनी पेनी मॉडल के बारे में जो कुछ हमने पढ़ा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो अभी आप इंटरेक्टिव सेशन में भी पूछ सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सर ये जो लास्ट स्लाइड थी उसमें 6 पाई क्यों पुट किया गया है? T बराबर 6 पाई। जी जी, जनरल वैल्यू पुट की है, पी की कोई भी वैल्यू, इंटरमीडिएट वैल्यू जो फाइनाइट है वो पुट करके देखती है, यू कैन वेरी। यहाँ हमने सिर्फ ये डिस्कस किया है कि अगर के की वैल्यू को बड़ा कर दें या छोटा कर दें तो उससे अलाउड और फॉरबिडन बैंड की विड्थ पे क्या फर्क पड़ता है। सेकंड केस में हमने उसको बहुत ज्यादा बड़ा करके देखा और आखिरी केस में जो है हमने उसको जीरो करके देखा। सर जो ए ग्राफ है इसके जो लगे हुए हैं स्क्वायर टाइप छोटे छोटे, ये जी जी, अलाउड बैंड को शो कर रहे हैं। जिसको शेड किया गया है वो अलाउड बैंड्स हैं। जी जी। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो को क्रॉस कर गई हैं वैल्यूज, इस कितना हिस्सा हॉरिजॉन्टल लाइन से बाहर है कर्व का, जी सर। वो फॉरबिडन रीजन, जिसको वाइट छोड़ा हुआ है। अगर ये मैं पॉइंटर से आपको दिखाऊं तो ये अलाउड रीजन हो गया, ये भी अलाउड रीजन हो गया और ये भी अलाउड रीजन हो गया। अब ये आपके पास फॉरबिडन रीजन है वाइट सारा, ये सारा फॉरबिडन रीजन है एंड सो ऑन। ठीक है, सर इसमें बाकी साइज का फर्क क्यों है? जो अलाउड रीजन है ना, मतलब जो तीसरा वाला है वो उसकी थोड़ी ब्रीड ज्यादा है। जी 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 जी, ये तो क्लियरली अल्फा ए के साथ आप इसकी वेरिएशन देख रहे हैं ना, आप इक्वेशन को देखें जिसको आपने प्लॉट किया है। जैसे जैसे जी अल्फा सर। की वैल्यू बढ़ेगी काज अल्फा ए की वैल्यू छोटी होती जाएगी। ठीक है, अल्फा का वैल्यू जी जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारा जी जो जी अलाउड रीजन है वो वाइड होता जा रहा जी सर। है। जी बेटा, कोई और क्वेश्चन? जी, इसमें जो फॉरबिडन रीजन आता है वो कैसे आता है, मतलब? इस ग्राफ को आपने सुना था? जी सर। कैन यू हेयर मी? जी, इसके राइट हैंड साइड का हमने ये ग्राफ बनाया था, पहला ग्राफ ठीक है सर। जो कंटिन्यूस ग्राफ है। उसमें वेरिएशन क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक हो गया। अब हमने ये कहा कि इसी इक्वेशन की अगर लेफ्ट साइड को देखें वो काज थीटा है, काज के सिंपल काज थीटा है। तो यस सर। इक्वेशन की दोनों साइडें बराबर होती हैं ना। यस सर। ठीक है, तो लेफ्ट साइड के बराबर होना चाहिए राइट साइड। तो इसका मतलब हम जी। राइट साइड की सिर्फ वही वैल्यू ले सकते हैं जो कि लेफ्ट साइड के बराबर हो। यस सर। अब लेफ्ट साइड पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? cos थीटा की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है? रियल वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 1 और मिनिमम कितनी हो सकती है? 0। मिनिमम -1 हो सकती है। -1। ठीक है, तो ये ठीक है। देखें, ये +1 की लाइन आपने लगाई है और ये आपने -1 की लाइन लगाई है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक्स एक्सिस के अलावा। ठीक ठीक है, तो इस रीजन के ठीक है अंदर सर। अंदर जो कर्व का हिस्सा होगा वो अलाउड होगा, जो इससे बाहर निकल जाएगा वो फॉरबिडन, वो अलाउड नहीं है, मुमकिन नहीं है, वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है हमारी। जो लेफ्ट जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी हम कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं, मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल करने के लिए? लेफ्ट हैंड साइड सिंपल cos थीटा है। जी जी। cos थीटा के लिए आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक कोसाइन फंक्शन जो है उसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम -1 हो सकती है। ना 1 से कभी ज्यादा वैल्यू मिलेगी आपको, ना 1 से कभी हाँ, कम कम। वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है उसमें आपके पास। ठीक है सर। जी बेटा, कोई और क्वेश्चन? सर इसका बेसिकली पर्पस क्या है? इस जो मॉडल हमने पढ़ा है इसका मतलब कोई जर्नल एक ही सिर्फ वही लाइन में समझ आ सके, इसका क्या है जी, इसका जो मकसद? अगर आपने आज के लेक्चर को ही शुरू में सुना हो या कल के लेक्चर को स्टार्ट में सुना हो तो हमने शुरू बात की थी कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की कुछ लिमिटेशन है। जी सर। राइट, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की लिमिटेशंस को कवर करने के लिए हमने ब्लॉक फंक्शन लिया। वहां हमने कहा कि पोटेंशियल कंटिन्यूअस नहीं होती, पीरियोडिक होती है, फिक्स नहीं होती। राइट,
क्रोनी पेनी मॉडल में हमने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि मखसूस शेप होती है पोटेंशियल की, राइट। उसी पीरियाडिक पोटेंशियल को जो क्रोनी पेनी मॉडल ने इंट्रोड्यूस किया उसको यूज करके हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इलेक्ट्रॉन तमाम कंटिन्यूसली एनर्जी नहीं रख सकता। मखसूस रीजन्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है और कुछ मखसूस रीजन्स ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो रीजन जिनमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है उसको हमने अलाउड बैंड्स का नाम दिया है, एनर्जी बैंड्स का नाम दिया है। जहां नहीं एग्जिस्ट कर सकता उसको हमने फॉरबिडन एनर्जी रीजन का नाम दिया है, ठीक है। तो बेसिक जो थ्योरी है कंडक्शन की जिसको एक्यूरेट कंसिडर किया जाता है वो बैंड थ्योरी है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। जी सर। ठीक है, तो बैंड थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट हमें क्रोनी पेनी मॉडल से मिला है कि बैंड किस तरह बन सकते हैं, किस तरह एग्जिस्ट करते हैं, और वही बैंड अगर बरीलियन जोन के हिसाब से आप ड्रा करें तो आपको यहाँ नजर भी आ रहे हैं। सर कल स्टार्ट में ना अपने लेक्चर में आपने ये बात की थी कि कोई भी मटेरियल जो है वो अच्छा कंडक्टर क्यों है और सेमी कंडक्टर क्यों है, इस तरह से इंसुलेटर क्यों है। स्टार्ट में आपने ये बात भी की थी कल। यस, बिल्कुल की थी। उसका इसके साथ क्या ताल्लुक है? एक्चुअली बैंड थ्योरी को अगर आप थोड़ा सा जहन में लेके आए तो हम कहते हैं कि बुनियादी तौर पे दो तरह के बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड और दूसरा कंडक्शन बैंड। जानते हैं ना आप ये? जी सर। ठीक हो गया। और दोनों बैंड्स के दरमियान जो है वो स्पेस होती है जिसे फॉरबिडन रीजन या एनर्जी गैप कहते हैं, ठीक है। कंडक्शन उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है जो कंडक्शन बैंड में होते हैं, राइट। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाते हैं? वैलेंस बैंड से जाते हैं, ठीक है। तो अब वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान स्पेस है, गैप है। तो इस गैप को देख के आप बताएंगे कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है और कौन सा सेमीकंडक्टर है, राइट। तो अगर वैलेंस और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हो तो आप कहेंगे कंडक्टर है। सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर इन द वैलेंस बैंड आर आल्सो प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड, तो वो कंडक्टर कहलाएगा, ठीक है। और अगर माइनर गैप हो बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड तो आप कहेंगे सेमीकंडक्टर है। और अगर वाइड गैप हो, इतना ज्यादा हो कि आप एनर्जी दे के भी इलेक्ट्रॉन को जो है वो कंडक्शन बैंड में ना लेके जा सकें तो फिर आप कहेंगे कि ये इंसुलेटर है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर क्लियर है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंटरेस्ट। इसको स्टडी कीजिएगा, अगर फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। थैंक यू सर।